So today we will start with JSP. Okay, JSP stands for Java Server Pages. So it is server side scripting. Okay. Now, why JSP was introduced? Because servlets had some drawbacks. So in servlet, first drawback was you have to maintain multiple files. So the design part in a .html file, the logic part in a Java file. Okay, then compile the Java file, okay, to get class file, okay, and to coordinate between design and code, we needed the what? Web XML file, right or wrong? So like this, multiple files were needed to write one single application. Second drawback of Java was each time we did any modification in the servlet code, we had to recompile each time. So even if we added one semicolon, then we had to recompile the servlet, reload the application. Okay, every time we had to do this. Third, we had to create, we were the programmer had to create all the objects. Okay, so all the objects which we had, HTTP, okay, all the objects which you can think of, HTTP servlet request object, we had to create. So I could have given any name to it. I could have given HTTP servlet request object. I could have hang on. So all the objects we had to create. So I could have created any object, right? I can create request, I can create REQ. It all depends on the programmer. Okay, you can create request, you can REQ, you can make R1, whatever objects you want. Okay, similarly for the response object. So all the object creation. Okay, so we could have created response, we can make res, or we can make R2. Then the print writer. Okay, so print writer object we had to create. So I could have made the object name as out, I can make it as pw, whatever I want, p1. Okay, so HTTP session, so I could have made object as session, or I could made it as ses. Okay, so like this, all the object creation was to the developer. In your JSP, now what advantages the JSP has is no need to maintain several classes. So this is the advantages of JSP over servlet. So if they ask in the exam, you can write this in column format. Okay, only a single file is sufficient to store the design plus the logic.
Okay, and that single file is a .jsp file. Okay, so only a single file, you can say .jsp is sufficient, so entire code comes under one roof. Okay, each time no need to refresh, just save the changes and refresh the browser. That's all. No compiling, no reloading, nothing. So JS, if you have made changes in the JSP file, just save the changes and refresh the browser. And here you get ready-made objects. You get what? Ready-made objects you get over here. So the object for servlet request is request, ready-made object. Response, ready-made object. Out, ready-made object for print writer. Session, ready-made object for your session. Okay, so like this you have all the objects. So if I show you over here what all ready-made objects we have in our PHP. See over here, request, response, out, session. For servlet context, you have a ready-made object called as application. For servlet config, you have ready-made object called as config. Okay, so these all objects you get ready-made over here. Okay, for servlet config context, ready-made object called as, so no user does not have, programmer does not, the programmer is the burden of the object creation is shifted from the programmer. Okay, so all the ready-made objects are okay, and the JSP file internally compiles to a servlet. Okay, so your JSP file will internally be compiled to a servlet, that is .class file. Okay, so how it does is, so if you have named your file as add.jsp. Okay, so if I'm doing addition and you have named the file as add.jsp, okay, this is the file you have named. So how it will do is, it will put an underscore between it. The dot will be replaced by underscore, so it will make add underscore JSP and dot class. So internally your JSP will be converted to a servlet. So see over here, if you see in the notes, so from the client I get the request. In the web container I have a file called as add.jsp. It will go to the translation phase first. So that in the translation first, this add.jsp will be converted to add.java. Okay, and then in the compilation phase it will convert it to a add.class. Okay, so how will it name it? It will name it like this. Okay, so if I have to write something on it, let's say if I take a text box, if I take a simple text box, so that will become what? Add underscore JSP. Okay. Add underscore JSP will become. And then this will become what? Add underscore JSP dot class. Okay, so this is how internally it will create all that stuff. So this will be called as, I'll just write it over here. So add underscore JSP, not JS. Okay, it is going one line down. Okay, it is JSP only, and this will become what? Add underscore JSP dot class. So these are two phases the JSP will go through. Okay, translation phase and the compilation phase. And then normally how a Java class file is executed, it will be the same way it will be executed. The JRE, the runtime engine, will execute it.
okay, and then it will create an object of this class, so that is called a servlet object, and that object will prepare the content what we have to return with the response object. Okay, this is the Java introduction to Java JSP. Now, what are the advantages we have? Okay, so it is made on top of the servlet. Okay, so it is a superset, okay, a subset of the servlet. So your servlet is the parent and JSP inherits from the servlet. So all the features what are there in the servlet, that those all features can be there in JSP also. All web development features. Okay, easy to maintain. Why easy to maintain? You have to just maintain a single file. Okay, so the business logic and the presentation logic all are into one file. Okay, faster development, no need to recompile and no need to redeploy, just make the changes and refresh, so deployment becomes faster and less coding than compared to servlet, because we have all the ready-made objects, so coding has become less. So the part of creating the object, that part has been eliminated, so we have lots of implicit objects. Okay, now what is the life cycle of JSP? So first the constructor, this is called the constructor of JSP init. Okay, so whenever a JSP is loaded, first the JSP init function will be called, that is called as a constructor, and then the JSP service. So this service will now call the two methods, either do post or do get internally. So it will call any of them as per the method mentioned by the user. So that is your JSP service, and after your execution we will destroy. So this is the destructor of your JSP. Okay, what is the life cycle methods of JSP? JSP underscore init, JSP and underscore JSP service. Okay, there's an underscore over here. So JSP init, JSP destroy, and the underscore JSP service. This JSP service will internally invoke, okay, based on what method we are using, either do get or do post. Okay, so initialization, JSP init, main logic in underscore JSP service, and shutdown in JSP destroy. So draw this diagram when they ask you for the life cycle of the JSP. Okay, now how JSP works? So what JSP does is, JSP has created scriptlets. Okay, so in a single file, एक ही फाइल के अंदर अपने को जावा भी लिखना है और HTML भी लिखना ना, एक ही फाइल के अंदर अपने को जावा भी लिखना है और HTML भी लिखना है, दोनों भी लिखना है एक ही फाइल के अंदर, करेक्ट है क्या नहीं? यस सर। एक ही फाइल के अंदर अपने को जावा भी लिखना है और तो अभी वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जावा का कोड है, ये HTML का कोड है, कैसे करके आइडेंटिफाई? तो कैसे करते हैं हम लोग, जो भी पार्ट देखो फाइल, ये फाइल पूरी होंगी .jsp नाम से सेव। ओके, जो भी फाइल है अपनी add.jsp, ये होंगी पूरी एक ही फाइल, सिंगल फाइल होंगी ये। अब जो भी कोड इसके अंदर लिखा गया है वो जावा का कोड है, और जो कोड इसके बाहर लिखा गया है वो तुम्हारा HTML का कोड है। समझ में आया? जैसे कि एक सिटी है, उस सिटी में कुछ मिलिट्री एरियाज रहते हैं, ठीक है, ये एक सिटी है, तो जो जो मिलिट्री के एरियाज है उनके सिक्योरिटी से मालूम पड़ता है कि ये भाई मिलिट्री एरिया है। तो समझो एक सिटी में दो, अपने पूना में तो कैंटोनमेंट में आता है इधर सदर्न कमांड, और एक खड़की के अंदर कुछ एरिया आता है। ओके, तो ये है तुम्हारा मिलिट्री एरिया। इसके अलावा जितना भी एरिया है वो सब सिविल एरिया है, राइट? तो मिलिट्री एरिया का जो बाउंड्री है, जो उनका सिक्योरिटी है, उससे यू कम टू नो कि दिस इज अ मिलिट्री एरिया, राइट? वैसी सिक्योरिटी अपने को नॉर्मल सोसाइटी से बाहर नहीं मिलती है ना, इतने आर्मी मैन खड़े हुए हैं और ऐसा जो है जीप्स लगी हुई है, गन मैन खड़े हुए हैं। तो जो भी एरिया, ये बाय डिफॉल्ट पूरा कोड माना जाएगा HTML का, बाय डिफॉल्ट ये पूरा कोड माना जाएगा HTML का, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी जावा कोड लिखना है तो जावा कोड का हम एरिया बना देंगे। तो जैसे अभी ये सेम एग्जांपल में लेता हूं, तो ये समझो
मेरा कोड हो गया पूरा बाय डिफॉल्ट। तो अगर इसमें 1 लाख आबादी का ये शहर है, ठीक है, तो अगर समझो 100 लोग का है फॉर एग्जाम्पल, 100 पीपल आर स्टेइंग, सो यहाँ पर 5 मिलिट्री मैन यानी 5%, यहाँ 5%, बाकी 90% तो जो है वो पूरे सिविलियन ही है। तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा कोड जो है समझो 100 लाइन्स का है, तो 5 लाइन यहाँ जावा के और 5 लाइन यहाँ जावा के। तो जावा के जो 5-5 लाइन है वो हम लोग इसमें लिखेंगे इसके अंदर, ताकि मालूम पड़ जाए कि भाई ये जावा का कोड है, ठीक है। और बाकी इसके बाहर जितना भी कोड है वो सब HTML का है, तो इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट। क्या बोलते हैं? तो जावा का कोड स्क्रिप्टलेट के अंदर आएगा, जावा के बाहर का कोड जो है वो HTML में रहेगा। तो 90% आपको समझो HTML का कोड लिखना है तो आप सिर्फ सारा का सारा लिख सकते हैं, और 5% जावा का यहाँ पर 5% जावा का यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट। अब उसके 3-4 टाइप है स्क्रिप्टलेट्स के। तो ये अपना बेसिक स्क्रिप्टलेट है, ठीक है, बेसिक स्क्रिप्टलेट टैग है ये। जब आपको लेंदी जावा कोड लिखना हो, क्या लिखना हो? हाँ, ठीक है। तो अगर आपका जावा कोड जो है वो 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन का है, तो आप वो कोड को, जैसे आप लोग ना PHP में करते थे, याद है PHP में, तो व्हाट वाज PHP स्क्रिप्टलेट? इसको याद है ना? तो PHP का स्क्रिप्टलेट ऐसा था, जैसे इसका जावा का स्क्रिप्टलेट है। दूसरा, अगर आपको कोई डिक्लेरेशन करना है, जैसे मुझे कुछ डिक्लेयर करना है वेरिएबल इंटीजर a, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं डिक्लेरेशन। तो उसके लिए रहेगा क्वेश्चन मार्क, ये तुम्हारा परसेंटेज, उसके बाद एक्सक्लेमेशन, तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिक्लेरेशन टैग। तो ये एक तो एक तो जो है वो बेसिक स्क्रिप्टलेट टैग था लेंदी जावा कोड के लिए, और फिर एक है डिक्लेरेशन। तो अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप डिक्लेरेशन टैग में कर सकते हैं डिक्लेयर, ठीक है। जितने भी आपको करना है वेरिएबल डिक्लेयर सब आप इस टैग में कर सकते हो। ओपनिंग के लिए ये कैरेक्टर ऐड होगा, क्लोजिंग सबका सेम है, क्लोजिंग सबका सेम रहेगा, ठीक है। फिर अगर आपको अभी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जावा कोड लिखना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जावा कोड लिखना है आपको, तो आप एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एक्सप्रेशन टैग, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन टैग। वो है इक्वल टू, वो क्या है? इक्वल टू है। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे अभी हमको जावा कोड लिखा, समझो अपन ने कोई जावा कोड लिख दिया, तो जावा कोड लिखने के लिए क्या लगेगा अपने को? तो अपन ने कोई नंबर प्राइम है क्या नहीं वो सर्च कर लिया, कि यूजर से नंबर लिया और चेक किया कि वो प्राइम है क्या नहीं, तो पूरा प्राइम का लॉजिक अपन ने यहाँ डाल दिया क्योंकि जावा का कोड है, ठीक है। तो ठीक है, अब मुझे दिखाना है वो प्राइम नंबर को डिस्प्ले करना है। अब मुझे डिस्प्ले करना है उसको लेट से बोल्ड टैग में, इसमें डिस्प्ले करना है बोल्ड टैग में। तो बोल्ड टैग जो है वो HTML का है तो बाहर आएगा। अब इस बोल्ड टैग में मुझे छोटा सा जावा डालना है कि जो मेरा वेरिएबल था ना इंटीजर n, तो मुझे दिखाना है उसको n को बोल्ड में। तो ये मेरा b टैग हो गया, क्योंकि ये एक्सप्रेशन के बाहर है, मतलब ये HTML का कोड है, तो b हो गया और /b हो गया। अब इसमें से मुझे सिर्फ n डिस्प्ले करना है, छोटा सा एक ही वेरिएबल n, तो मैं उसको डाल दूंगा एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर आपको डाल दूंगा मैं, तो एक्सप्रेशन यूज कर लूंगा मैं कि भाई n डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, बस। तो जब छोटा सा अमाउंट ऑफ जावा कोड आपको डालना है HTML में तो यूज करते हैं एक्सप्रेशन टैग। और फिर आपको कुछ इंपोर्ट्स अगर करने हैं, पैकेजेस इंपोर्ट, जैसे आपको डेटाबेस पे काम करना है तो आप करेंगे java.sql.star, ठीक है। तो आपको कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास है जो है @, ठीक है। तो परसेंटेज, उसके बाद लगाने का @, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव्स। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टिव्स। तो अगर आपको डायरेक्टिव्स यूज करने हैं कोई तो आप @ लगा सकते हैं। अब डायरेक्टिव भी 3 टाइप के हैं, ठीक है। तो लेट्स मी शो यू।
सो सी ओ हियर। ओके, तो ये एक सादा स्क्रिप्टलेट टैग है, ये एक्सप्रेशन टैग है, ये डिक्लेरेशन टैग है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये अपन क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई मैंने एक फंक्शन बनाया है स्क्वायर, और जो भी नंबर दूंगा मैं वो नंबर का मुझे वो स्क्वायर रिटर्न करेगा, सिंपल आप लोग के लिए। तो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, तो ये सब डिक्लेरेशन इसमें आ गए। फिर आते डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स में कितने टाइप के हैं, पेज है, ठीक है, इंक्लूड है और टैगलिब है, ये 3 डायरेक्टिव है। ओके, तो अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो @page यूज करो, ठीक है। अगर आपको कोई पैकेज इंपोर्ट करना है तो ये मतलब डायरेक्टिव आ गया। कौन सा डायरेक्टिव, 3 डायरेक्टिव है अपने पास, पेज, इंक्लूड और टैगलिब। कितने डायरेक्टिव है, पेज, इंक्लूड और टैगलिब। डायरेक्टिव्स कितने हैं बोलो, डायरेक्टिव्स कितने हैं, इंक्लूड टैगलिब। हाँ, तो अगर आपको पेज का यूज करना है, जब आपको कुछ इंपोर्ट करना है, क्या करना है, ओके, इंक्लूड का यूज करना है जब आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल यूज करनी हो। जैसे अभी मुझे हर पेज पे डालना है हेडर फुटर, क्या डालना है, मेरा वेब पेज है, मेरा वेब पेज है, अब मुझे मेरे हर पेज पे डालना है हेडर जो हर पेज पे आएगा मेरे, और हर पेज पे डालना है फुटर, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे 10 पेज बनाने हैं, अगर मुझे 10 पेज बनाने हैं ऐसे, तो क्या राय है आपकी, ये जो है हेडर फुटर मैं कॉमन रख लूं क्या, और हर पेज पे ऐड करूं कि हर इसका कोड सब पे लिखूं, हाँ, ये हेडर फुटर का कोड में एक जगह सेव कर लूं और हर पेज पे इसको इंक्लूड करूं, क्या सारे पेजेस पे हेडर फुटर का कोड लिखो, सेव कर दो। हाँ। तो अभी मुझे कोई एग्जिस्टिंग फाइल, तो मेरी header.jsp फाइल होंगी, राइट, और footer.jsp फाइल होंगी, वो मुझे मेरे हाँ सर। फाइल में इंक्लूड करना है, तो उसके लिए अपन इंक्लूड डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा product.jsp पेज है। कौन सा पेज है, product.jsp, तो उसमें भी हेडर फुटर आया। फिर आगे जाके मेरा जो है वो build.jsp आएगा, उसमें भी हेडर फुटर चाहिए मुझे, है ना, और जो जितने भी पेजेस सब में ये हेडर फुटर चाहिए मुझे। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, फाइल वाला यूज कर लेते हैं, तो हम लोग फाइल को जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंक्लूड है, तो इंक्लूड कर दिया फाइल header.html या header.jsp जो भी, तो ऐसे आप लोग फाइल्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अपन जितने चाहो उतने फाइल को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग जो है टैग्स यूज करने हैं, तो उसके लिए ये टैग लिब है। आप अपना खुद का कस्टमाइज टैग्स बना सकते हैं और उनको स्टोर कर सकते हैं एक जगह पे। अब मेरे खुद के इनम के कस्टमाइज टैग्स हैं, तो मैं वो टैग्स को यूज कर सकता हूँ, तो @taglib उसका पाथ दे देने का, ठीक है। तो मैंने खुद के, अगर मैंने एक टैग बनाया है लोगो, समझो मैंने एक टैग बनाया है लोगो टैग, तो जैसे ये टैग ऐड करेंगे इनम टेक का लोगो ऐड हो जाएगा। तो अभी ये टैग कहाँ पर बनाया है मैंने और कहाँ सेव किया है इसको, तो उसका पाथ दे दिए, तो वो वहां से वो टैग पुल कर सकता है। तो ये सब बोलते हैं, तो ये टैग लिब कस्टमाइज टैग स्टोर करने के लिए, कितना कस्टमाइज टैग्स। तो ये 3 टाइप के ऐसे तुम्हारे टैग्स है, ठीक है। और फिर जो अपन ने बनाया रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, ये सब रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर। ओके, नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल डेमो ऑफ हाउ वी विल वर्क। सो अभी देखो ये 2 फाइल है, ये index.html है, ये add.jsp दिख रहा है, एक html फाइल है, एक jsp फाइल है, jsp। तो इंडेक्स में क्या है, सीधा सिंपल 2 नंबर अगर ऐड करने का कोड रहेगा अपना, तो क्या रहेगा, एंटर नंबर 1 एंटर नंबर 2, है ना। जब इस पे सबमिट क्लिक करेंगे तो किस पे कॉल होगा, एक्शन कॉल होगा। कौन सी फाइल एक्शन की, add.jsp। तो ये सारा कोड जाएगा इधर add.jsp पे, और ये अपना जावा का स्क्रिप्टलेट है, ये अपना डिक्लेरेशन है ना।
तो जो बाहर का कोड है वो पूरा HTML का कोड है, तो ये पूरा कोड ये कोड HTML का। और जावा का कोड तो ये डिक्लेयर कर रहे हैं अपन वेरिएबल, उसको डाल दिया एक्सक्लेमेशन में, डिक्लेरेशन में, और फिर ये जावा का लंबा कोड है। तो यहाँ रिक्वेस्ट बना बनाया ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट यूज करने का, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। T1 क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, ठीक है। और उनको रीड ऐड कर लिए और उसको डिस्प्ले कर दिया डायरेक्ट अपन। ओके सर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मतलब अपन जो ये फाइल है ना T1 और T2 जो टेक्स्ट बॉक्सेस है, उसका डेटा रीड, इसका डेटा रीड करने के लिए, क्योंकि ये आ रहा है रिक्वेस्ट से ना। अच्छा हाँ, और फिर अपन ने उसको रीड कर लिया, चूंकि वो स्ट्रिंग में आएगा, टेक्स्ट बॉक्स का डेटा स्ट्रिंग में आता, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और ए में स्टोर कर दिया। फिर ए और बी को ऐड कर दिया और आउट भी बना बनाया ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टली अपन ने डिस्प्ले कर दिया। सर सिस्टम नहीं लिखे तो भी चलता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, और लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आउट लिखने का। ये प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है, वो अपन कंसोल पे डिस्प्ले नहीं कर रहे, वेब पेज पे डिस्प्ले कर रहे, ठीक है। और फिर अगर आपको ये दिखाना है, बोल्ड में दिखाना है, या हाइपरलिंक बनाना है उसका, तो ये अपन ने अगर हाइपरलिंक बनाए और ये छोटा सा जावा कोड डाल दिए उसके अंदर, तो ये जो सी है ना वो हाइपरलिंक बन के आएगा। तो ऐसे, सर इसको ऐसा टैग्स में क्यों लिखे? क्योंकि अपन HTML के अंदर भी लिख सकते हैं कोड को, ये बोल रहा हूँ मैं। अपन HTML के अंदर भी जावा कोड डाल सकते हैं एक्सप्रेशन यूज करके, छोटा सा जावा कोड डालना है ना, तो एक्सप्रेशन टैग यूज करके डाल सकते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं। अगर आपको इस कंफ्यूज करा तो उसको छोड़ दो, इतना कोड लिख के आ जाना बस, 2 नंबर ऐड करने का, ठीक है। तो ये आपका इंडेक्स HTML हो गया और ये आपका JSP कोड हो गया। आया समझ में?